Assalamu alaikum everyone, this is Sapahat and here I am in my live session as usual. So I'm just going to have a look at Facebook and see who is live, because today I guess I'm right on the spot at 6 o'clock. So let me just check and then I can get back to you. And in the meantime, if there's anyone online, do let me know through your emojis or your faces, smiley faces actually, or those small DPs I can see at the top of my screen. So that's how I know you people are live. Okay, so I'm just going to have a look and see if there's anyone who's live over here. आज तो भाई जुम्मा है, सब ने जो है वक्तों पे छुट्टी भी कर ली होगी, ऑफिस भी वाइंड अप हो गए होंगे. Okay, so I can see someone's live over here. If you would be kind enough to let me know where you are logging in from. Are you from Islamabad, Pindi, Lahore, or whichever place or city you are from? You can just let me know in the comment box. And then then you can guess what the caption is and what I intend to talk about. Okay, so there is one small DP I can see, and it's in the, actually it's on camera. So probably at the end, Raja Saeed Zada. Thank you so much for joining this session and watching this session. Okay, so today the caption is very open and it's very clear. So कोई जो है उसमें disguise नहीं है, everything is clear. And I hope you'll be able to understand and resonate. Abdussalam, walaikum assalam. Okay, I don't know why is it giving me slow connection sign, but let's see कब तक चलता है. Okay, so आज के जो topic है, that is about Mirza Saeed Beg, FX. What's FX for? Is FX a car? Okay, Raja Saeed Zada, I'm humbled and you're most welcome. So, okay, and I'm highly indebted to everyone who joins these live sessions whenever I'm online and exchanging my views about different aspects of life, whether it's personal, whether it's professional. So a huge thank you to every one of you. So first of all, I'm just going to begin with self-care. चूँकि आज का जो टॉपिक है that is about self-care, और अब देखें ना आगे वीकेंड भी आ रहा है, तो you would want to do some kind of self-care, क्योंकि थ्रू आउट वीक तो आप कर नहीं सकते. थ्रू आउट वीक तो most of you are busy with their jobs or professional activities or whatever you are doing, whether you are in a remote setup or whether you are in a field setup or you are working professionally or you are doing some kind of work in offices or organizations. So weekend is a good time कि जब आप जो है ना थोड़ा बहुत self care कर सके. But overall I'm just going to talk about self care जो आप different elements of life में inculcate कर सकते हैं, and then that's how you can improve your overall well-being. So self-care basically it's about like you have to practice by taking intentional practices and actions in order to maintain your overall self-being. और उसमें जो है like there is a broad range of activities when we talk about self-care. And you know what, while I'm talking I want you to add your comments in the कमेंट बॉक्स, सो आपके भी फीडबैक साथ के साथ आता रहे. एंड आई ऑल्सो नो कि भाई आप लोग भी ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं अपनी डेली रूटीन में, कंसिडरिंग सेल्फ केयर. ओके, आई एम नॉट यूजिंग एनी फिल्टर, क्योंकि देयर वर पीपल हु वर सेइंग कि भाई फ़िल्टर लगा कर आई लुक टू आर्टिफिशियल, एंड यू नो व्हाट, दैट्स राइट, क्योंकि आई डोंट लाइक टू बी अनरियल. क्योंकि if I'm talking about something that's real and that has very much to do with practical life and your own personal insights. So जब आप filter लगा लेते हैं, though it does look good on the camera कि भाई आपका जो है ख़ास तौर पे जो complexion है it's looking far better than it actually is, but it's always better to remain your own
yourself. So be true to yourself. So if you don't have a problem with yourself, then you don't need these filters. So I don't have a problem with myself. Okay, Raja Said Zada, you're saying is take healthy food on time is part of self-care. Yes, taking healthy food and plus it's healthy, it's a very essential requirement for self-care. Because you know what happens is that हर एक के जो है ना एक टाइम होता है खाने का, और उसमें जो है यानी नाश्ते का एक टाइम होता है, फिर खाने का, लंच का, फिर डिनर का. सो अगर आप जो है अपना खाना टाइम पे नहीं लेते तो उससे जो है ओवरऑल आपकी वेलबींग किस तरह इफेक्ट होती है कि आपकी जो बॉडी होती है उसमें डाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, एंड समटाइम्स इट माइट टेक लॉन्गर. सो इफ़ यू मेक अ टाइम टेबल, क्योंकि अगेन ईटिंग ऑन टाइम इट्स अ हैबिट विच यू डेवलप विद टाइम. So those people who have a proper schedule to follow and who have a proper eating style, कि भाई आपने सुबह नाश्ता जो है एक टाइम पे करना है. Like most of the people they usually take their breakfast around 8 o'clock. और अगर मैक्सिमम भी हो, और ख़ासतौर पे 8 o'clock वो लोग जिन्होंने ऑफिस जाना होता है, इवन इफ़ यू आर इन अ रिमोट वर्किंग एनवायरनमेंट, द बेस्ट टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट इज अराउंड आई गेस 8 और 9 के बीच में ले लेना चाहिए. लाइक इफ़ यू आर डूइंग वॉक और एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, सो इस टाइम में बाय 8:39 आप कर लें नाश्ता, क्योंकि उसमें जो है आपका आप देखेंगे जो डाइजेशन है इट्स गोइंग टू बी वर्किंग मच मोर एज कम्पेयर टू जितना आप लेट करते जाएंगे. सो ईटिंग फूड ऑन टाइम इट्स रियली गुड. ओके, यस रईस नसीबुल्ला, थैंक यू सो मच. आपी जान जो है फ़ाइन है, एंड आपी जान इज टेलिंग यू अबाउट हाउ टू केयर फॉर योर सेल्फ, एंड आई एम गोइंग टू कवर डिफरेंट थिंग्स जो कि आपको आपकी लाइफ में, रेगुलर लाइफ में और ओवरऑल वेल बीइंग में हेल्प करती हैं. सो येस, आई वाज सेइंग आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ फिल्टर्स, क्योंकि फिल्टर्स से आई लुक टू आर्टिफिशियल. उसमें कुछ पता नहीं चलता मेरा मुंह किधर है, कहाँ पर जो है या नहीं. आई कॉन्ट इवन कन्वर्स एट टाइम्स जो है व्हेन आई एम टचिंग माई नोज, और अगर इवन इफ माई चीक्स, आई एम टचिंग माई चीक्स, तो वो जो फिल्टर होता है सो इट्स गोइंग elsewhere, और वो पता चल रहा होता है इट्स अ फिल्टर. सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दैट. Okay, Raja said, you are saying how much minimum time required to sleep for good health, if possible. Let me know. I would like to follow up. Okay, everyone has their own body requirements, but जो एक effective sleep time है that is from 6 to 8 hours. इफ़ यू कैन वैसे आई वुड से कि भाई जैसे जैसे आप एज करते जाते हैं ना, आपका जो स्लीप टाइम है वो कम होता जाता है. सो इंस्टेड ऑफ लाइक यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्लीप, अगर आपको नींद नहीं आती तो इवन 6 hours इज़ ऑल्सो इट्स इनफ. और यह है कि इफ़ यू गेट अप अर्ली देन यू कैन ऑलवेज डू मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, and you can even recite Quran Pak if you wake up early. So उसमें जो है आपका जो है mind it would be more active, and you'll be able to follow up through the whole day. But 6 to 8 hours sleep is must. और फिर इसके साथ आपने पानी की intake भी अपनी पूरी रखनी है. Okay, so now I'm just going to go forward, and first of all चूँकि जो सेल्फ केयर के लिए ब्रॉड एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड देयर इज़ अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल, और ये दोनों मिल के जो है ना आपकी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल सेल्फ केयर. अब फिजिकल सेल्फ केयर की जब बात की जाती है तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ रेगुलर एक्सरसाइज. अच्छा, रेगुलर एक्सरसाइज में जो है यानी आमतौर पे जब बात की जाती है पीपल थिंक कि भाई एक्सरसाइज जिसमें आ गया तो भाई एक्सरसाइज का मतलब ये है कि अपने आप को जो है ना आप एक उसमें वर्जिश में डाल दें. येस, इट इज़ वर्जिश, बट ये है कि देन यू कैन डू डिफरेंट एक्टिविटीज़. आप वॉक भी कर सकते हैं. इफ़ वॉक सूट्स यू यू कैन डू वॉक. इफ़ लाइक if you know कि there are certain organs of your body which need more exercise, then you can always download certain apps, or you can even just go in the park, and there are many instruments in the park, and you can go and do some crunches over there. even आप घर पे भी कर सकते हैं. You just have to build stamina for that, क्योंकि एक जो होती है ना
कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ज़बरदस्ती अपने ऊपर एनफोर्स करनी पड़ती हैं फॉर योर ओन वेल बींग, एंड आई थिंक एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि आप जब अपने ऊपर एक चीज़ सवार कर लेंगे तो देन यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि भाई अच्छा मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो चलो कल से स्टार्ट करूँगी, तो वो कल कभी भी नहीं आएगा। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ दीज थिंग्स कि आप यू हैव टू टेक द एक्शन, क्योंकि जस्ट थिंकिंग इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। जस्ट सोच लेना या ये है कि जस्ट कावे पी लेना और ये सोचना कि भाई मेरा वज़न कम हो जाएगा, उस तरीके से नहीं होता। यू नो एवरीथिंग गोज़ हैंड इन हैंड। जहाँ पर आप कावे पियेंगे वहाँ पर आपने अपनी जो प्रॉपर डाइट है उस पर भी आपने नज़र रखनी है। आई वोंट से कि भाई यू शुड गो ऑन डाइट्स, क्योंकि डाइट्स जो है देयर आर मेनी type of diets, but every diet is not suitable for every person. So if you want to it is true everyone knows about their own body, but ये है कि even जो है diet के लिए भी you have to visit a nutritionist once in a while to just see कि भाई कौन सी चीज़ें हैं जो कि क्योंकि देखिए if you're going to professionals तो दे हैव दैट नॉलेज एंड दैट एक्सपर्टीज़ कि कौन सी बॉडी टाइप के लिए क्या चीज़ पॉसिबल है। लाइक आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम व्हेन फैट डाइट वाज वेरी इन, और हर दूसरा बंदा दे वर इनटू फैट डाइट्स, बट देन फैट डाइट्स इट्स नॉट नेसेसरी इट्स गोइंग टू वर्क फॉर एवरीवन, क्योंकि जितनी जो है चीज़ों में मिलावट हो चुकी है उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप कहें कि जी मैं ये खाऊंगी तो इससे मैं गेन नहीं करूँगी। आप उससे भी गेन करेंगे और प्लस जो आपके हार्मोनल अनबैलेंसेस होंगे उससे भी आप गेन करेंगे। सो फॉर दैट यू नीड टू एटलीस्ट वंस विजिट अ फिजिशियन अ न्यूट्रिशनिस्ट, या जो भी जो है डाइट से रिलेटेड है वेट लॉस के लिए, वट एवर यूर प्रॉब्लम इज़। सो आप जब उनको विजिट करेंगे दे विल गिव यू सर्टेन टेस्ट। वो टेस्ट आप जो है कहीं से भी करा सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको कहेंगे आपने इस स्पेसिफिक लैब से करवाना है तो आप यहीं से कराएं। यू कैन गो टू एनी प्लेस एंड देन व्हेन दोज रिजल्ट्स कम इन देन यू विल बी इन अ पोजीशन कि भाई आपने क्या चीज़ कर लिया। क्योंकि हो सकता है कि आप विदाउट एनी टेस्ट विदाउट गोइंग टू एनी फिजिशियन अपने ओन से जो है डाइट स्टार्ट कर दें, और फिर उसका नतीजा क्या होगा, नतीजा यू कैन वेल इमेजिन कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांटेड। उसकी सिंपल रीज़न ये है कि यू डोंट नो हाउ द हार्मोनल सिस्टम इज़ वर्किंग इन योर बॉडी। सो हो सकता है आप कोई ऐसी जो है डाइट ले रही है जो कि आपको सूट नहीं करती, सो रादर कि वो आपको फ़ायदा दे वो उल्टा आपको नुकसान देगी। सो फिज़िकल सेल्फ केयर के लिए you need to before going for any kind of diet you have to visit a professional, and then exercise के लिए आप कर सकते हैं exercise, but then again you have to see your family history। अगर से आपकी family history में जो है heart problem है या किसी किस्म का asthma है या बैक एक है या joint problems है, then you are not going to do those kind of exercises जिससे जो है exertion ज़्यादा हो। you're always going to look for exercises जिससे उन organs पे जो है उस तरीके से pressure ना आए, क्योंकि it's not going to be good for the overall health। उससे जो है आप मज़ीद स्ट्रेस में डाल देंगे उन organs को ज़ोर ज़बरदस्ती में। सो अपने साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, अपने ऊपर कोई चीज़ लागू करना दैट इज़ डिफरेंट, बट अपने साथ जुल्म करना दैट इज़ टोटली डिफरेंट। सो जुल्म नहीं करना। यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर ओवरऑल हेल्थ, तो वो बगैर जुल्म किए भी आप कर सकते हैं। जुल्म आप सिर्फ करेंगे अपने खाने में एहतियात पे, एंड यू विल बी वेरी कॉन्शियस। जो कॉन्शियस माइंडफुल ईटिंग होती है दैट इज़ यू विल बी एग्जैक्टली नोइंग कि भाई मैं क्या चीज़ कंज्यूम कर रहा हूँ आई एम सॉरी या कर रही हूँ, एंड इट हैज़ टू बी हेल्थी। ओके, फिज़िकल सेल्फ केयर में एक ही चीज़ आ जाती है। फिर इसमें एक जो चीज़ आ जाती है, जिस तरह अभी राजा सईदज़ादा ने जो है पूछा था स्लीप के हवाले से, कि स्लीप एडिक्वेट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितनी आपकी क्वालिटी स्लीप होगी ना उसका फ़ायदा क्या होगा, उससे आपके एनर्जी लेवल्स जो है बूस्टेड रहेंगे, आपके मूड्स एलिवेटेड रहेंगे, और प्लस आपके जो ओवरऑल कॉग्निटिव फंक्शन है ऑफ द ब्रेन वो बहुत अच्छा काम करेगा। अब आप अक्सर देखते होंगे, यानी आई डोंट नो अबाउट यू पीपल कि आपका क्या होता है, बट मोर और लेस सिमिलर कंडीशंस होती हैं। लाइक अगर मेरी नींद ना पूरी हो तो मेरा दिमाग बंद हो जाता है। मैं अगर कुछ पढ़ भी रही हूँ तो आई विल बी अनएबल टू अंडरस्टैंड।
सर में दर्द शुरू हो जाएगी, आंखें बंद होनी शुरू हो जाएंगी, स्ट्रेस फील होना शुरू हो जाएगा। सो उसमें इट्स ऑलवेज बेटर कि भाई आप जो चीज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अव्वल तो वो पढ़े नहीं, जाकर थोड़ी देर सो लें, चाहे 15 मिनट सो लें, आधा घंटा सो लें, वट एवर इज़ सूटेबल फॉर यू। और फिर उसके बाद जब आप अपनी चीज़ को परसू करेंगे सेम रीडिंग मटेरियल को, आफ्टर यू हैव सम रेस्ट आप उसको परसू करेंगे, तो आपको जो है इन अ जिफी वो चीज़ समझ भी आ जाएगी एंड यू विल बी एबल टू गो थ्रू इट। सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर आप जो है स्लीप पेंडिंग करते रहें तो आपका जो बॉडी सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होना शुरू हो जाता है। और वो किस तरीके से होता है कि बैठे बैठे आप सो जाएंगे, काम करते करते जो है पता ही नहीं चलेगा आपने आंखें बंद की हैं, या आंखें खुद ही बंद हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ने कोई ख़ास ही मैकेनिज़्म बनाया, आपको नींद आ रही हो तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। सो आप कोशिश जितनी भी कर लो जागने की, आप नहीं जाग सकते, और फिर ब्रेन में स्ट्रेस अजीब सा होना शुरू हो जाता है एंड यू कैन नॉट डू योर वर्क। एंड इट इज़ यू नो डिफरेंट जो प्रोफेशंस होते हैं दे रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम टेबल्स। सो उसके मुताबिक जो है आपने अगर आप वो टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं तो स्टिल आपने अपनी जो है सेल्फ केयर करनी है। लाइक आई नो कि जो डॉक्टर्स की प्रोफेशन होते हैं उसमें जो है स्लीप is very less, but then again they too are humans and they too need to maintain their sleep. So वो किस तरीके से maintain करते हैं, जो उनके पास टाइम होता है। वैसे तो आमतौर पे मैंने देखा उनको नींद ही नहीं आती, आई डोंट नो वेयर डू द, और शायद इसी वजह से अल्लाह मियाँ उनको जो है डॉक्टर की फील्ड में लेकर जाते हैं कि उनको नींद के इश्यूज़ नहीं होते। और बाज़ जिनको होते हैं ऑब्वियसली वो फिर बताते तो नहीं है कि भाई हम ड्यूरिंग प्रैक्टिस जो है सो गए थे, बट देन देर आर पीपल हु डू कोट सच थिंग्स बीइंग अ डॉक्टर कि जी वी वर स्लीपिंग ऑन ड्यूटी, बट देन अगर स्लीप ऑन ड्यूटी करेंगे तो देन इट्स गोइंग टू बी एडवर्सली इट्स गोइंग टू एडवर्सली इफेक्ट द पेशेंट्स। सो कुछ ये चीज़ें हैं जो कि वी कैन नॉट रिस्क एंड वी कैन नॉट डू being a doctor. So whoever is in this field, in this profession. Raja, okay, I was seeing if you have any other question for me. Okay, फ़िलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है मज़ीद। देन इसमें जो है अब ये फ़िज़िकल सेल्फ केयर की बात हो रही है, इसमें आपकी जो है एक्सरसाइज भी आ गई, इसमें आपकी स्लीप भी आ गई, और इसमें अगेन आपका जो है खाना भी आ जाता है। सो यू नीड टू हैव अ बैलेंस डाइट फॉर द ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बींग। अच्छा, देन एक फिर इसमें एक जो चीज़ मज़ीद आ जाती है जब हम आगे चलते हैं, दैट इज़ मेंटल एंड इमोशनल सेल्फ केयर। एंड अगेन उसमें भी जो है यानी यू नो व्हाट, ये सारी चीज़ें वो है जो कि एवरी वन ऑफ अस गोज थ्रू इन आर डेली रूटीन्स, बट इट्स जस्ट दैट कि हाउ यू आर कनेक्टिंग दैट डॉट, या हाउ यू आर लिंकिंग दोज थिंग्स। लाइक इफ a normal person is sitting, we might not be thinking about those things, but then again those people who think and those who are more deeply analyzing things, so they would always be looking at these things and try to connect everything together, और फिर उसी connection से जो है ना you come to a solution. लाइक जब मेंटल एंड इमोशनल सेल्फ केयर की हम बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है, यू नीड टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि without managing your stress you won't be able to have a healthier life. और उसमें जो है देन आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, यू कैन डू मेडिटेटिव एक्सरसाइजेज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। योगा में ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, उसमें आप देखेंगे यानी एट टाइम्स जब when you'll start, if you are not into yoga or deep breathing exercises, तो यू वुड बी लाइक सांस अंदर लेने ही प्रॉब्लम हो जाएगा, आप कहेंगे इतना ज़्यादा सांस अंदर खींचता ही नहीं है। अच्छा, देन आप ये चीज़ देखें कि लाइक बचपन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हम करते हैं एंड वी जस्ट थिंक कि भाई इसमें क्या कमाल है ना, कि ये क्या चीज़ है। और ये जिस तरह एक सिंपल एग्जांपल लें बैलून फुलाने की, जिस तरह जो है स्कूल में जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें एक जो एक्टिविटी होती है दैट इज़ हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग टू कितने जो है ना बैलून्स उन्होंने फुलाए हैं। एंड
लेट मी जस्ट टेल यू, वो जो है ना बैलून्स नहीं फूलते। और वो क्यों नहीं फूलते? क्योंकि यू हैव नेवर exerted that kind of force on your lungs। जब आप जो है बैलून को जो है फुला रहे होते हैं, तो आपके जो है ना लंग्स सही तरीके से जो है ना फोर्स लगा रहे होते हैं, एंड देन यू आर एबल टू डू दैट। अदरवाइज अच्छे खासे जो लोग होते हैं, इवन बड़े भी, वो भी बैलून्स को फुला नहीं सकते। एंड देन इट ऑल्सो शोज योर हार्ट स्टेटस, इफ हाउ मच यू आर एबल टू वो आप बैलून फुला सकते हैं। बट देन दीज यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स कि भाई वो गुब्बारे फुलाने में जो है ऐसी क्या चीज़ है कि भाई लोग जो है ना ये एक्टिविटीज़ रखते हैं। सो इट इज़ ओवरऑल गुड। प्लस चूँकि जो करिकुलम्स होते हैं दे आर डिज़ाइंड इन अ वे कि बच्चों की आप फिज़िकल और मेंटल एक्टिविटीज़ पे जो है ना फोकस कर रहे होते हैं। इवन जो डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, उन ट्रेनिंग्स में भी इसी तरह होता है कि ट्रेनिंग में एक चीज़ होगी जिससे जो है आपका जो है ना माथा ठनकेगा कि भाई ये ट्रेनिंग में ये चीज़ क्यों है, इसके क्या जो है कनेक्शन है इस ट्रेनिंग के साथ। बट देन when you study these things, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा भाई ये एक्टिविटीज़ तो जो है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए थी। इसमें एक और मैं आपको चीज़, अब चूँकि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट का कर रहे थे, तो उसमें मेरे जहन में डिफरेंट जो है ओके शाहजेब खान, यू वांट टू जॉइन ऑन वीडियो? ओके, अभी आई एम टेकिंग द लाइव सेशन, सो आफ्टर दिस लाइव सेशन आई कैन send you an invitation and you can join. Would that be okay? You can just write in the inbox and then I can bring you live on camera. Okay, so उसमें जो है जो चीज़ होती है ब्रेन एक्टिविटी से रिलेटेड मैं बात करी थी। लाइक देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस होती हैं। अब कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस बज़ाहिर तो हम कहते हैं जी कोऑर्डिनेशन बच्चों में किस तरह कोऑर्डिनेशन की जाए, बट देन देयर आर वेरी सिंपल प्लेन प्ले एक्टिविटीज़। जिस तरह आप देखेंगे जिस तरीके से जिस तरह दालें चुनी जाती हैं, लाइक देयर आर डिफरेंट ग्रेन्स ऑफ एवरी पल्सेस एंड देन इट्स गिवन टू द चाइल्ड कि जी नाउ यू सॉर्ट दैट आउट। और वो सॉर्टिंग आउट करने में वो कॉग्निटिव और जो कोऑर्डिनेशन स्किल्स हैं और जो हैंड मूवमेंट्स हैं और जो फोकस है, दैट इज़ व्हाट्स बीइंग फोकस ऑन दोज एक्सरसाइजेस। और उसमें भी बहुत बच्चे होते हैं जो कि कहते हैं कि भाई ये हमने नहीं करना। बच्चे क्या है, इनफैक्ट जब आप बड़े होते हो और आपको किचन में जो है वो दालें साफ़ करनी पड़ती हैं, तो तब आपको भी जो है ना मौत आती है कि भाई ये दालें नहीं साफ़ की जाती कि ये क्या मुसीबत है कि पहले इनको धो, फिर इनको पहले इनको साफ़ करो, फिर इनको धो, एंड दिस एंड दैट। बट इट्स everything is for a purpose. We just need to connect the dots and then चलो ये तो दालों की एक एग्जांपल हो गई। इसमें और क्या एग्जांपल हो सकती है? इसमें एक जो एग्जांपल है ना, लाइक जो मेरी बहनें यहाँ पर हैं वो ये चीज़ समझती होंगे, और इवन जो भाई मेरे यहाँ पर हैं जो कि शेफ़ हैं वो भी ये चीज़ें समझते होंगे कि जब आप आटा गूंथते हैं, लाइक जब आप आटा गूंथते हैं तो आपके जो नकल्स होते हैं उससे आप जो है ना फोर्स लगा रहे होते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर दी हैंड मूवमेंट्स एंड दी नकल्स। वरना तो जो है ना लोग जो है कहते हैं कि भाई हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो डो मेकर जो है ले आओ, वही आटा गूंथेगा तो हाइजीनिक रहेगा, आटा भी हाइजीनिक रहेगा। बट देन अगेन दीज आर ऑल आई वुड से एडवांसमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यू डू यूज़ देम टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट देन अगर आप ये वाली बेसिक एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते तो फिर आप कहाँ तक चलेंगे? अब तो वैसे ही जो है ऑस्टियोपोरोसिस जो है इतना कॉमन है विद एवरी पर्सन कि अगर आप जो है कहोगे भाई ये भी ना करो तो वो वैसे ही टाइम से पहले ही आ जाएगा। बट देन इफ़ यू कनेक्ट द डॉट्स, बहुत से हमारे एंसेस्टर्स हु यूज्ड टू डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन, दे वर द वंस जिनकी लाइफ जो है काफ़ी देर तक जो है ना चलती रही है, और अभी भी दो दे माइट बी बेड रिडन बट स्टिल उनके हाथ पाँव चलते हैं, एंड दे स्टिल हैव दोज फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर हैंड्स एंड फीट रादर देन वी पीपल हु आर इन आर 40s and 50s, और हमें जो है प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं कि भाई अब नकल्स दर्द कर रही हैं, अब पाँव में दर्द है, अब टांगों में दर्द है, एंड सो फोर्थ। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अच्छा, देन इसमें जो है सफ़िया सुल्ताना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। यूसुफ खान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन, एंड आफ्ताब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।
एंड वॉचिंग दिस सेशन. ओके, देन मेंटल हेल्थ में एक जो चीज़ मज़ीद आ जाती है, दैट इज़ इमोशनल एक्सप्रेशन. अब हम जब अपनी टेक केयर करते हैं ना, एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं ना, हम सारी चीज़ों को ना ऊपर ऊपर से देख रहे होती हैं, बट देन अगेन उसमें जो इमोशंस हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब उन इमोशनल्स को आपके लिए उसको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है. अब वो आप किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप जो है लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, घर वालों के साथ कम्युनिकेट करें, या आपके जो लाइफ पार्टनर्स हैं, आपको कोई चीज़ जो है बॉदर करती है, कोई चीज़ मैटर कर रही है, तो उनके साथ कम्युनिकेट करें. एंड दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन एंड अपना जो इमोशनल डिस्ट्रेस है उसको लूज़ करने के लिए, इवन स्ट्रेस भी मैनेज करने के लिए. यू नीड टू टॉक विथ योर लाइफ पार्टनर्स, योर स्पाउसेज, इवन योर पेरेंट्स. इफ़ यू आर नॉट मैरिड, आप पेरेंट्स से बात कर लें, सिबलिंग से बात कर लें. सिबलिंग्स वो जो कि आपके एज ब्रैकेट के हों, बहुत ज़्यादा छोटे ना हो, क्योंकि हो सकता है जिन स्ट्रेस से या जिन प्रॉब्लम से आप जा रहे हैं वो आपके जो छोटे सिबलिंग्स हैं वो अंडरस्टैंड ना कर सकें, तो फिर उनको खामा की स्ट्रेस देने का क्या फ़ायदा है. या फिर आपके ऐसे दोस्त जो कि आपकी बातें अंडरस्टैंड करते हैं या आपकी नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं, यू कैन ऑलवेज टॉक टू देम. दो दे माइट नॉट बी इन द पोजिशन कि वो आपको जो है कोई मशवरा दे सके, या माइट दे कैन गिव यू सजेशन. इट ऑल डिपेंड्स कि आर यू रेडी टू लिसन टू देयर सजेशंस और एडवाइस, या यू जस्ट वांट अ लिसनिंग ईयर. So if you have friends who are good at listening, you can always release your emotional distress. And but ये है कि उनसे बात करने से पहले just tell them कि भाई I just want you to listen, don't give me any advices. But then अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो it means you somewhere unconsciously are seeking some kind of advice from them. So you can always tell them कि भाई I want your advice. That is if you trust them and if you know कि they can address your problems. Okay, so emotional expression हो गया. अच्छा, then इसमें एक और जो चीज़ है सेल्फ केयर में, you need to set boundaries. और वो बाउंड्रीज़ आपने इस्टेब्लिश करनी है अपने रिलेशनशिप्स में और ओवरऑल अपनी वेलबींग में, वट एवर दोज बाउंड्रीज आर. रिलेशनशिप में बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यू वुड नेवर वांट कि भाई आपके जो है आपके जो ओवरऑल वेल बीइंग है वो इफ़ेक्ट हो रही है ड्यू टू नॉट सेटिंग बाउंड्रीज. क्योंकि देन हर एक के वीक एरियाज होते हैं एंड यू वुड नेवर वांट कि भाई anyone is going to hit on those weak areas. So for that matter you need to set your boundaries. Okay, then एक और जो चीज़ फॉर सेल्फ केयर आ जाती है दैट इज़ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन. भाई ये तो मस्त चीज़ है. अगर आप रिलैक्स नहीं करेंगे, अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे, तो भाई बस आप जो है ना रह जाएंगे. आप जो है ना ऐसे जो है ना टूटेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि भाई मेरे साथ हुआ क्या है. वर्किंग इज़ गुड, नो डाउट, बट देन you need to give ample rest to your body. क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले कहा है, अगर आप बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे तो बॉडी जो है ना आपका इंतज़ार नहीं करेगी. बॉडी ने खुद शट डाउन हो जाना है, और जब वो शट डाउन होंगी और फिर आपको वर्क इफेक्ट होगा और हफ्ते 2 हफ्ते तक जो है आपसे उठा भी नहीं जाएगा, काम भी नहीं किया जाएगा जब तक आपकी बॉडी बैक टू नॉर्मल नहीं आ जाती. क्योंकि जिस तरीके से जो है ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं ना, और ऑटोमेटिक सिस्टम जो है जब तक जो है कर रहे हैं जिस तरीके से लाइक लोग, चूँकि इट्स टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस सो मच इन डिफरेंट कंट्रीज़ कि हर चीज़ के लिए जो है ना ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं. और ऑटोमेटिक सिस्टम में भी जो है अगर कोई खलल आ जाता है तो जिस तरीके से वो बंद हो जाता है, इसी तरीके से ह्यूमन सिस्टम भी जो है ना ऑटोमेशन पे चला जाता है. आप उसको जो है जितना ओवर स्ट्रेस करेंगे या ओवर डू करेंगे या जो है जुल्म करेंगे उस सिस्टम के साथ, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा. और जब वो शट डाउन होगा तब आपको जो है पता चल जाएगा कि भाई मैंने इसको जो है ना प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया, रिलैक्स नहीं किया, इसलिए ये शट डाउन कर गया. और फिर आप कोशिश भी करेंगे ना काम करने की, तब भी काम नहीं होगा. आपका माइंड चाह रहा होगा, बट यह है कि आपके ओवरऑल जो बॉडी मूवमेंट्स हैं या एनर्जी लेवल्स हैं, आंखें हैं, कोई भी चीज़ आपकी कोऑर्डिनेट नहीं करेगी एंड यू विल जस्ट गिव अवे जब तक आप जो है रेस्ट नहीं कर लेंगे. सो रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप
पे वो डिपेंड करता है वो रेस्ट आप किस तरह करते हैं। चाहे वो रेस्ट आप जो है बेस्ट तो है कि सो कर करें, और अगर आपने जो है सो कर नहीं करना तो देन डू रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ जिससे यू फील नाइस। रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ में यू कैन ऑलवेज टेक अप सर्टन हॉबीज़, उससे जो है आप रिलैक्स हो सकते हैं। then people usually go to massage centers। वैसे I would ख़वातीन हो या बंदे हों, I would never suggest you people to go to massage centers, क्योंकि जो massage centers हैं उनकी security कोई नहीं है, and for safety measures it's always best to have some person जिनको आप घर बुला सके and then you get the massage done। और massage में भी लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, शोल्डर मसाज हो जाएगी, हैंड मसाज हो जाएगी, या फीट की मसाज कर लेंगे। सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दोज बट विद अ ट्रस्टेड पर्सन। ये नहीं कि हर नथु गैर को उठाकर आप घर बुला लें और कहें हाँ भी चलो आओ आज मेरी शोल्डर मसाज कर दो। नो, यू आपकी सेफ्टी, आपकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल सिक्योरिटी वो आपके अपने हाथ में होती है। यू हैव टू हैव ट्रस्टेड पीपल, और हर एक को आप घर नहीं बुला सकते, हर एक स्पा में भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि देन आप उसमें चले तो जाएंगे बट एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट नो कि भाई किस किस्म के स्पा हैं और वो किस किस तरह का आपका जो डाटा है वो आउट कर दे, अपलोड कर दें, डार्क वेब पे डाल दे, कुछ भी हो सकता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर प्राइवेसी, क्योंकि इज्जत से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं होती, राइट। सो दिस इज़ फॉर माई फेलो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स जो भी यहाँ पर हैं, और कोई ज़रूरत नहीं है खामा के जो है रिस्क लेने की। अगर आपको किसी का नहीं पता तो किसी को जो है बुलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बेस्ट यही है कि घर में जो है बच्चे होते हैं, बच्चों से कहें कि वो आपको दबा दें, चाहे वो वालिद हैं चाहे वो वालिदैन हैं। और प्लस इससे जो है देखिए आपको जो है सुकून भी मिल जाएगा और बच्चों को भी जो है जन्नत कमाने का मौका मिल जाएगा। एंड इस तरीके से आप अपने बच्चों को भी ट्रेन कर सकेंगे ना, राइट। ओके, सो दिस इज़ रिगार्डिंग रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। अच्छा, फिर इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है, आई थिंक देयर आर सर्टेन मैसेजेस, लेट मी टेक दोज मैसेजेस। रिक्वायर्ड फॉर स्लीप, ओके, आई डोंट नो, लेट मी जस्ट चेक आउट। स्क्रॉल, ओके, कायनात, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। ओके, देन आपके जो है ना ओवरऑल सेल्फ केयर में सोशल कनेक्शंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू नीड टू बिल्ड अ नेटवर्क विच इज़ सपोर्टिव, ठीक है। और वो सपोर्टिव नेटवर्क ऐसे ही हो सकता है कि भाई यू डिस्कस अबाउट पॉजिटिव रिलेशनशिप्स या उनके इम्पैक्ट क्या होते हैं, और वो जो सपोर्ट है दे आर प्रोवाइडिंग यू पॉजिटिव सॉल्यूशंस या वट एवर stage of life you are in, and you want to have those solutions to and you want to resolve things na, so you need to build such kind of network with people। तो वो जो है कहते हैं ना, जिसकी समझ आती है उससे बात करो, जिसकी समझ नहीं आती उससे भाग जाओ, क्योंकि then again you cannot understand every kind of person। like I know I am very comfortable with people who are positive, yeah, people who have something good to offer to the world, and it's not that कि भाई they're all money minded, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं who want to deliver। like if I'm sitting here and taking these sessions, so I want to share my experiences in life, yeah, whether they're personal whether they're professional, क्योंकि it's a way of giving back to the community। and then there are many of you who would who can not want to, you can resonate with whatever I'm telling you, या आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी वाक़यात हो रहे हैं या किस तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि when someone begins to talk about themselves or their circumstances or issues or problems whatever they are in whether they have gone by, पास में गुजर चुके हैं, खैर पास से के तो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं आप उनसे लर्न करके यू मूव इन द फॉरवर्ड, एंड द बेस्ट थिंग इज़ टू बी इन द प्रेजेंट। सो प्रेजेंटली आपको जो प्रॉब्लम्स फेस आ रहे हैं, if you are able to address those problems, then there are many जो कि maybe they won't be having a way out कि भाई इनको किस तरह जो है ना resolve किया जाए, but then when they are going to listen to you, so automatically they'll be able to resolve those problems, and that is how you create a positive impact, and that is how you build supportive relationships।
सो सोशल कनेक्शंस आप इस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं. देन you need to spend ample time with your loved ones. अब वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके स्पाउसेस हैं, आपकी फैमिली है. जब आप उनके साथ एम्पल टाइम गुजार रहे होंगे ना, तो देन यू विल फील वेरी नाइस, और उसमें यू विल बी क्रिएटिंग अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट. इस तरह नहीं होगा कि आप ये सोचेंगे भाई मेरी बातें जो है ओवरऑल कम्युनिटी पे तो जो है बहुत अच्छा वर्क करती हैं, पर मेरी फैमिली पे नहीं वर्क करती. बट देन वो इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी बातें जो है लोगों पे काम करती हैं तो वो आपकी फैमिली पे भी काम करेंगी. क्योंकि आप जो भी होते हो या जो आप बन रहे होते हो, उसमें फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है. एंड देन चिल्ड्रन जो है, मैं चिल्ड्रन की इसलिए बात करती हूँ क्योंकि आई एम अ मदर, एंड आई इंटरेक्ट विद नॉट ओनली माई चिल्ड्रन, आई इंटरेक्ट विद माई चिल्ड्रंस फ्रेंड्स एज वेल. So यह है कि you have to look out of the box, and even like it's not that like when I'm dealing with children I have to put myself into their shoes, but when I'm dealing with adults I have to put myself into their shoes, and then I have to I try to resonate कि being an adult person, या if I was in their shoes how would I feel, ये किस तरीके से होगा, and then accordingly you come up with solutions to different problems. And then it's not necessary that you're just addressing adults in one field. There are you are addressing everyone in different fields. For that you have to have a growth mindset, you need to be open, you need to be able to take in whatever is coming your way. And then जब सेल्फ केयर की बात आती है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग टू बी टेकिंग एवरी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, एवरी काइंड ऑफ टॉक्सिक एनवायरनमेंट या टॉक्सिसिटी, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर योर ओवर हेल्थ. और उसमें आप खुद ड्रेन आउट होना शुरू हो जाएंगे, स्ट्रेस आउट होना शुरू हो जाएंगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड ना. अच्छा, सो यू नीड टू गिव क्वालिटी टाइम टू योर लव्ड वंस. ये चीज़ जो है ना उसमें मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ में आ जाती है. अच्छा, कल हमने बात की थी डिजिटल डिटॉक्स की, सो आई डोंट हैव टू रिपीट माई सेल्फ कि डिजिटल डिटॉक्स आप किस तरीके से कर सकती हैं. सो सेल्फ केयर में एक जो चीज़ है, डिजिटली यू नीड टू गिव योर सेल्फ सम स्पेस कि भाई कि हाउ यू कैन कीप अवे फ्रॉम डिजिटल डिवाइसेस फॉर अ सर्टेन टाइम. एक हद तक जो है वट एवर यूर डूइंग, लाइक इफ़ आई एम हेयर गिविंग अ लाइव सेशन, आई नो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज पार्ट ऑफ वर्क, बट देन अगेन आई ऑल्सो हैव अ टाइम कि भाई जहाँ पर मैंने जो है डिजिटली जो है बिल्कुल अनप्लग होना होगा. एंड आई नो इट्स गोइंग टू बी वीकेंड, सो यू ऑल्सो नो कि सैटरडेज एंड संडेज को आई डू नॉट कम लाइव, क्योंकि देन आई हैव plenty of chores to do at my home and plenty of self-care activities as well. So when I'm back on Monday, so I'm fresh again, ready to pour in my suggestions and uh, get ahead with the whole week. So I'm ready for that. So digital detox, it's very necessary, और weekends पे तो it's a must. अच्छा, देन उसमें जो है एक और चीज़ इसमें आ जाती है, दैट इज़ सेल्फ रिफ्लेक्शन. सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है आप किस तरीके से कर सकते हैं, देयर आर सो मैनी वेज टू डू सेल्फ रिफ्लेक्शन. Firstly is goal setting. You can look at your goals and then you can reflect back कि अच्छा भी ये मैंने जो है ना पिछले साल या इस साल के स्टार्ट में ये लिस्ट बनाई थी, तो ये गोल्स हैं, इनमें से कितने मैंने अचीव कर लिए, कितने नहीं अचीव किया, एंड देन यू हैव टू रिवाइज दोज. क्योंकि देन देर आर सर्टन गोल्स जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं, देन देर आर गोल्स जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, एंड यू हैव टू गो थ्रू दैम एवरी टाइम, एवरी डे. इनफैक्ट आपको ना अपने जो गोल की लिस्ट है वो एवरी डे रिव्यू करनी चाहिए, रादर देन कि आप वीक के एंड में कर रहे हों या महीने के एंड में कर रहे हों. इट्स अ गुड activity. Then self reflection आप किस तरह कर सकते हैं, you can write diary every day. Writing is a very good exercise and it reflects a lot. It not only improves your skills of writing, but also it impacts your overall memory, क्योंकि when you are thinking about the whole day and इनफैक्ट यूर रिफ्लेक्टिंग इट ना कि पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक आपने क्या किया, एंड देन एट टाइम्स उसमें पता है मज़े की क्या चीज़ होती है, मज़े की ये चीज़ होती है कि एट टाइम्स यू फील यूजलेस द होल डे, बट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर डायरी जिसमें आपने कुछ राइट किया होता है,
तो यू कम टू नो कि ओ माई गॉड, मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें की हैं आज के दिन में, एंड यू आर अमेज्ड, एंड यू कैन जस्ट बोस्ट दैट टू योर फैमिली कि भाई लुक दिस इज़ व्हाट आई डिड इन दिस डे। बच्चों को क्या आपने उनको बोस्ट करना, आप अपने मियाँ को ही दिखा सकते हैं या आप अपनी बीवी को ही दिखा सकते हैं कि देखे मैंने आज के दिन में ये चीज़ें की। क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आपने चीज़ें की हैं वो बहुत कोई बड़ी हैं, बट जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो छोटी छोटी चीज़ों पे भी आपका अच्छा खासा टाइम लगा होता है, एंड देन यू कैन रिजॉइस ओवर इट, क्योंकि दोज आर द स्मॉल जॉयज एंड सक्सेसेस जो कि आप एवरी डे में अर्न कर रहे हैं। सो यू नीड टू बी हैप्पी फॉर दैट एज वेल। और वो जो है सेल्फ केयर में भी आता है कि व्हेन यू आर रिजॉइसिंग योर स्मॉल अचीवमेंट्स अलॉन्ग विद द बिग अचीवमेंट्स, एंड दैट मीन्स अ लॉट। और प्लस जब आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे होते हैं, इमोजीज भेज रहे होते हैं और अच्छी अच्छी बातें कमेंट बॉक्स में कर रहे होते हैं, दैट ऑल्सो मोटिवेट्स मी, एंड दैट मेक्स मी डू मोर एंड मोर गुड टू द ओवरऑल कम्युनिटी, एंड आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन में जो है, और आई गेस इसके अलावा और क्या हो सकता है, यस ये चीज़ें हैं। फिर एक और चीज़ ये है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन अ प्रोफेशनल एंड एकेडमिक वे। अब वो किस तरीके से आप कर सकते हैं एकेडमिकली, तो जो है यू नीड टू okay, yes, academically again it's about time management. If you are involved in some kind of courses, or you need to go through them, then you need to have a balance, और वो stress management उसमें आ जाएगी, and then आपने जो है ना अपना जो एकेडमिक है और जो प्रोफेशनल है, यू नीड टू बैलेंस इट इन अ वे कि कोई भी चीज़ इफेक्ट ना हो। क्योंकि अगर आप जो है से इफ़ यूर अ प्रोफेशनल और आप ज़्यादा जो है प्रोफेशन पे ध्यान दे रही हैं, तो देन जो आपका पर्सनल टाइम है और पर्सनल स्पेस है, दैट्स गोइंग टू बी अफेक्टेड। सो यू हैव टू कीप अ बैलेंस इन दैट। और जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, तो प्रोफेशन में भी अगेन यू नीड टू हैव अ सोशल नेटवर्क, और वो सोशल नेटवर्क उन लोगों का होना चाहिए जिनसे जो है ना you can get to them, you can have discussions with them, have discourses with them regarding anything you are facing. So professionally you need to connect with the like-minded people, and you can that always leaves a positive impact on the overall well-being. देन उसमें जो है आपके जो है वो सुपरवाइजर्स भी हो सकते हैं, कलीग्स भी हो सकते हैं, कैन बी एनी वन, कैन बी योर मेंटोर्स, कैन बी योर सीनियर्स, कैन बी एनी वन। देन फॉर सेल्फ केयर, जिस तरह मैंने पहले बात की कि जिस तरह आपके छोटे छोटे जॉयज़ होते हैं, यू नीड टू हैव ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स देम, यू नीड टू बी थैंकफुल कि भाई अल्लाह मियाँ ने आपको ये ब्लेसिंग्स दी हैं, वेदर इवन इफ दे आर स्मॉल। You need to celebrate your achievements, whatever achievements those are. It's not necessary कि achievement जो है ना कोई आपको थाली में रख कर पेश करेगा. Achievements is anything which makes you happy. You people are when you people are feeding my inbox with the comments and suggestions, that's an achievement. I feel happy on that, and that's why I give back the replies. Yes, हर रोज़ मैं रिप्लाई नहीं कर सकती. I have to look at those comments over the weekend, and then I try to reply them back. जिसके जो comments होते हैं, if they are ethical, तो yes, definitely I do answer you back. But yeah, if they are not ethical, तो I try not to answer back, क्योंकि वो कहते हैं ना, अब मेरे जहन में इसमें एक और ही बात आई है, वो कहते हैं ना हंसी तो फंसी. तो अगर जो है आप किसी का इमोरल कमेंट है उस पर आप जो है आंसर बैक कर देते हैं, तो देन इट गोज़ अ बिट फर्दर. द अदर पर्सन थिंक्स कि हाँ भाई इसने कमेंट का आंसर कर दिया तो अब तो ये फंस जाएगी. सो ये है कि आई कैन नॉट आंसर बैक टू दोज कमेंट्स, सो आई रादर ट्राई टू जस्ट लीव देम एज दे आर. बट देन जिनके जो है बहुत their comments have something valuable to add to my life, and whatever I'm adding value to other people's life, if those comments are like those, I always try to answer them. और प्लस ये है कि जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं रिगार्डिंग माई प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ भी, या फिर अबाउट द टॉपिक, आई डू ट्राई टू आंसर दैट एज वेल. ओके, so this is about celebrating achievements, and then you need to have positive talk, self talk.
सेल्फ टॉक के बारे में अक्सर लोग ये समझते हैं कि भाई जो बंदा अपने आप से बातें करता है वो पागल होता है. इट्स नॉट दैट. Trust me, it's not that. When you are doing self talk, so you come to unlock many potentials which you might never think you have. And plus, आप अपने आप से जब बात करते हो ना, तो उसमें जो है you get to explore yourself more and you might find answers to things जो कि शायद लोगों के पास ना हो. Mohammed Wasim, thank you for joining in. सो सेल्फ टॉक इट्स रियली गुड. आप जो है यानी दूसरे लोगों से तो करते ही करते हैं, बट जब आप अपने साथ बैठ के बातें कर रहे होंगे तो इट्स नॉट नेसेसरी आप जब जस्ट येस एंड नो में, एट टाइम्स येस एंड नो में आप आंसर दे सकते हैं, बट देन योर ब्रेन इट्स एनालाइजिंग and you are coming up with a different analysis, different discourses, different suggestions. So it's not wrong to self talk, or you can be your best friend when you are self talking, rather than looking for other people who can be of comfort to you, yeah, who can aid you in your problems. So if you want to help yourself, firstly you need to analyze yourself, you need to know yourself in and out, and then you'll find solutions automatically. ओके, सो इसमें एक और जो चीज़ है, आई गेस मे बी दिस इज़ द लास्ट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू शेयर. शाहिद जट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. यू नीड टू बी, यानी जब सेल्फ केयर की बात आती है, वैसे सेल्फ केयर के अलावा और किसी भी चीज़ की जब बात आती है ना, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड अडेप्टेबल. और उसमें जो है यही है कि यू नीड टू look at your life and look at your lifestyle as well. और जो चीज़ें आप कर रहे हैं for self care, you can always pinpoint things. कुछ चीज़ें जो है they might be working for you, कुछ चीज़ें जो है they might not be working for you, but then जो चीज़ें workout नहीं करती, you can always add other things and you can try them out. क्योंकि life जो है it's a journey and it's all about exploration. And yeah, whatever you are doing here, you are exploring and experimenting, और उसी तरीके से आप लाइफ गुजार रहे हैं. यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर कनेक्टिंग विद द राइट माइंड सेट, यू आर कनेक्टिंग विद द राइट काइंड ऑफ पीपल, you are building a network of support and communication, and you are dealing with so much and so many people, and all you're doing is you're experimenting. सो ये है कि रादर देन कि अपने आप को जो है आप एक जगह पे स्टैगनेंट कर लें, और फियर उसमें जो है अपने आप पे सवाल कर लें कि भाई डर के मारे आप लोगों से बात ना करें कि भाई अगर मैंने ये बात कर दी तो लोग नाराज़ ना हो जाए. भाई क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकार कर देंगे ना, या रूड हो जाएंगे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है. क्या रूडनेस आपने पहले कभी ज़िंदगी में नहीं देखी? क्या कभी जो है कोई किसी टीचर ने आपसे रूडली बात नहीं की, या किसी बॉस ने आपसे रूड बात नहीं की? किसी ने रूड बात कर दी तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा. सिर्फ जो है ना आपने अपने आप को जो है ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, सेंसिटिव ना बने. जब सेंसिटिव बनेंगे, सेंसिटिविटी इट्स नॉट अ वीकनेस, ठीक है. बहुत जो है हाईली क्रिएटिव पीपल, दे आर वेरी सेंसिटिव, बट देन अगेन आपने जो है if you want to survive in this world, you need to let go of certain things. You have to be mentally strong, ठीक है. सेंसिटिव आप बेशक रहें, बट ये यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. सेंसिटिविटी में ये नहीं कि भाई इसने मुझे जो है आपकी बजाय तू क्यों कह दिया, ठीक है. दिस इज सेंसिटिविटी. सो ये चीज़ें नहीं अपने ऊपर सवाल करनी, एंड इट रियली डजेंट मैटर कोई आपके बारे में क्या सोचता है, या कोई आपको जो है बुरी तरीके से एड्रेस करता है. इट्स ओके, वो उसका फेल है, वो आपका फेल तो नहीं है ना. आपका फेल ये है कि अल्लाह ने आपको जो है अक्ल दी है, आपको शऊर दी है, आपको इखलाक दी है, और आप जो है लोगों से भी उसी इखलाकियात के स्टैंडर्ड पे बात करते हैं. अब अगला जो है आपके साथ जिस तरह भी बात करे, चाहे वो अच्छे तरीके से बात करे, चाहे वो गंदे तरीके से बात करे, वो उसका फेल है. सो व्हाई शुड यू हैव एनी गिल्ट कि भाई मेरे से ऐसे बात कर ली. सो नेवर फियर. और वो फियर्स जो कि आपको खामखा आते हैं, वो तो बिल्कुल भी ना करें. डू द थिंग, एंड इफ़ देयर इज़ एनी थिंग विच इज़ नॉट गुड, या विच इज़ चैलेंजिंग, या ये है कि वो हम कहते हैं ना कि वील डिसाइड व्हेन वील कम टू द ब्रिज. सो ब्रिज पे जाकर डिसाइड करें वेदर वो फियर जो है सही था कि नहीं था, बट उससे पहले क्या फियर करने की ज़रूरत है. थिंक अबाउट अ थिंग एंड देन टेक द एक्शन.
बट येस दीज एक्शंस आर फॉर द पॉजिटिविटी, ठीक है। ये एक्शन जो है ना नेगेटिविटी के लिए नहीं है कि आप सोचेंगे भाई उसने मेरे साथ बड़ा फड्डा किया था तो मैं कल जाकर उसकी गर्दन तोड़ूंगा, और आप जो है ना उस पर एक्शन लेने पहुंच जाए, अगले दिन पहुंच जाए अगले की गर्दन तोड़ने के लिए। नॉट दीज काइंड ऑफ एक्शंस, ठीक है। एक्शंस इन द पॉजिटिव सेंस, एक्शंस जिससे जो है आपका भी भला हो और लोगों का भी भला हो। दीज आर द काइंड ऑफ एक्शंस आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। लड़ाई झगड़े वाले एक्शंस नहीं मैं बात कर रही। So this is what I wanted to share today, and this is all related with self care। और चूँकि it's weekend, so there are many things जो कि आप weekend पे कर सकती हैं। just relax yourself, rest yourself and give yourself ample time। अपने आप को भी टाइम दें, अपनी फैमिली को भी टाइम दें। weekends is all about being together with the family। जिनकी families हैं it's an asset for them, जिनकी families नहीं हैं they can always uh, go out or hang out with their friends if they have good friends, rather than hanging out करते हुए जो है you just forget your ethics या values and you just hang out कि भैया आप जो है पड़े हुए हैं, कोई जो है वेप्स कर रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई क्लब्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सो डोंट गेट इनटू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, क्योंकि ये ओवरऑल आपके जो है हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, और जो रेपुटेशन है उसके लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और प्लस अगर आप अच्छे घर के बच्चे हैं तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल जेब नहीं देती। सो वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड आर सेल्फ इन अ वे कि हम जहाँ से आ रहे हैं वी आर रिप्रेजेंटिंग दोज, चाहे वो हमारी फैमिलीज़ हैं, चाहे वो हमारी कंट्री है। एंड एज एन इंडिविजुअल भी ये चीज़ें मुनासिब नहीं लगती इफ़ यू ब्लो एवरीथिंग आउट ऑफ proportion। So this is my advice for today, and that would be all. And now I'll see if I can bring anyone on camera. There was one person who wanted to come on camera. Let me just check. uh, I don't know वो कहाँ गए हैं। Okay, so let me see किधर थे। Yes, there was one over here, but I think अभी नहीं है। अभी there's someone on the top of my screen। I'll try to add। ये कोई फ्रेम है, ब्लू फ्रेम है, बट आई डोंट नो इसके अंदर किसका मुंह है। सो इफ समवन टेल्स मी, यस शाहिद जट, ओके। सो लेट मी सी। शाहिद जट साहब, मैंने आपको जो है ऑन कैमरा इनवाइट किया है, एंड लेट मी सी इफ यू कैन कम ऑन कैमरा। उमैर खान आबाद टू हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, बट व्हाई आर यू आबाद टू? एक के खान, okay, thank you so much for joining in and watching। Okay, I'm still adding Shahid Jet Saab, and I don't know if he'll be able to come online or not। Let me just see। Okay, so आप जो मेरे स्क्रीन पे एक्टिव थे, if you want to come live on camera, it's totally up to you, and if you don't want to come then you can just decline। सो आप डिक्लाइन कर जाएंगे तो तभी मुझे समझ आ जाए कि यू डोंट वांट टू कम लाइव ऑन कैमरा। एंड देयर इज वन पर्सन, वसीम साहब, आप तो लाइव नहीं, ओके, नो आंसर, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। वसीम साहब इज आल्सो ऑन कैमरा, बट आई डोंट नो वेदर ही वांट्स टू कम लाइव और नॉट, बट आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई। देखिए, इससे अच्छा मौका नहीं होगा लाइव आने का। So you can always come live, and I guess he makes he's from police service। इनका यूनिफॉर्म यही बताता है मुझे। ओके नाउ, वाओ, क्या बात है, आप तो वाकई लाइव आ गए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। अच्छा, आपको अलाउ है अपनी सर्विस की तरफ से कि यू कैन कम लाइव ऑन कैमरा? जी, अलाउ है भी सही, नहीं भी, लेकिन मैनेज कर लेते हैं। देख लें आपके चक्करों में कोई मुझे ही ना उठा कर ले जाए कि भाई ये लाइव आए थे इनके साथ। नहीं नहीं, आपको कोई नहीं उठा के लेके जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने अपना जो नाम नंबर है वो छुपाया हुआ। क्या चीज, सॉरी, बैकग्राउंड में शोर था, समझ मैंने नहीं आई। कहा मैंने कहा मेरा नंबर वगैरह शो नहीं हो रहा ना, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुंह तो शो हो रहा है ना।
मुंह का क्या, मुंह तो हर जगह वो तो अलाउ है हमें, जैसे सोशल वो तो मीडिया है, फेसबुक टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, वो कोई मसला नहीं हमारे लिए। अच्छा, अच्छा, चलें चलें ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि देखिए मेरी जो फॉलोअरशिप है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये कही थी कि भई आपको पता नहीं अलाउड है या नहीं है, तो आपके चक्करों में मैं खामखा ना मारी जाऊँ। मैं तो बड़े एहतियात से जो है चलती हूँ, और प्लस सोशल मीडिया नहीं पे नहीं, इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप इस बात की अच्छा, टेंशन ना लें। चलें चलें, अच्छी बात है। चलें जी, अब आप जो है फाइनली जी जी। लाइव आ गए हैं मेरे इसमें लाइव सेशन में, तो आप बताएँ आज के टॉपिक के हवाले से आप क्या बात करना चाहेंगे? आज का टॉपिक मैंने सेल्फ अभी केयर के साथ। ज्वाइन किया, अभी कुछ खास मुझे पता भी नहीं है आज का क्या टॉपिक था। अच्छा, ये आज का 5 मिनट टॉपिक हुए मैंने। हाँ, नहीं मैंने देखा था आपने लेट ज्वाइन किया था, बट मैंने कहा कि ये अच्छा मौका है, आपकी थोड़ी झिझक भी निकल जाएगी, आप थोड़ा ऑडियंस से बात भी कर लेंगे। तो ओवरऑल आप क्या फील करते हैं सेशंस के हवाले से? जी, अच्छा फील करते हैं, आपकी बातें जो है समझ में आती हैं। अच्छा, चलें दैट्स गुड। तो आपको ये तो नहीं लगता मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलती हूँ, उर्दू में बोलती हूँ? सॉरी, अभी आप बताएं क्या करी थी। मैं कह रही हूँ आपको मेरे सेशन से ऐसा तो नहीं लगता मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलती हूँ और उर्दू में बात नहीं करती? जी प्लीज रिपीट कर दीजिए, असल में वो साथ में रोड है ना, तो गाड़ियां वगैरह अच्छा, आती हैं, आवाज सही खराब है। हो जाती कोई मसला नहीं। मैं कह रही हूँ कि आपको मेरे सेशंस में ऐसा तो नहीं फ़ील होता कि मैं ज़्यादा इंग्लिश में बात करती हूँ और उर्दू में बात नहीं करती? है। नहीं ऐसा नहीं है, इंग्लिश में भी बात करनी चाहिए, उर्दू में मिक्स होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए, हुँ, समझ आ जाती है। चलें दैट्स गुड। इससे अच्छी बात है कि आप मुझे आपको समझ आ जाती है, तो मेरा मकसद तो पूरा हो गया। तो जी जी। चलें आप मैसेज छोड़ना चाहेंगे? किस हवाले से। वैसे ही जनरली ऑडियंस के लिए, या कोई भी आपके जो है ज़हन में कोई बात हो जो आप करना चाहें? मेरे माइंड में ये आ रहा है कि आजकल ना जैसे बहुत सारे फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं ऑनलाइन, जो चीज़ें लोग सेल परचेज करते हैं। तो कल भी एक मेरे दोस्त थे, उनके साथ फ्रॉड हो रहा था। उन्होंने एक बाइक लेना था OLX पे ना, अच्छा। किसी बंदे ने अपना नंबर दिया हुआ था और बाइक की पिक्स वगैरह शेयर की हुई थी। हुँ, तो उसने मुझे नंबर दिया कि ये बंदा वेरीफाई कर दें कि ये एक नंबर है या दो नंबर है। सही। मैंने अपने सोर्सेज यूज किए, मैंने 2-3 बंदों की ड्यूटी लगाई। हुँ, तो हुँ। हमारा काम यही होता है, बंदा ट्रेस करना। मैंने बंदा ट्रेस करने की कोशिश की, फिर जो उसके इलाके का बंदा था, उसके मोहल्ले का, तो वहाँ के बंदे को नंबर दिया। तो उसने फ़ोन पे बात की, उसने कहा कि आप फलां करनी है, वो मैं आपकी देखना चाहता हूँ। तो वो बंदा आगे से फिर घबरा गया, वो कहते नहीं मैं फलां जो है ना, मैं फलां जगह का हूँ। वो अपनी लोकेशन, जगह, नाम हर चीज़ चेंज करने लगा। अच्छा। हमने सिम वगैरह का डाटा वगैरह चेक करने की कोशिश की, जब चेक किया वो भी किसी और के नाम पे थी, जैसे उसने पैसे वगैरह देखे ना, किसी और के नाम पे सिम चली गई थी। ये फ्रॉड। अच्छा, अच्छा। हुँ, तो हुँ। मैंने फिर दोस्त को बताया कि फ्रॉडिया है, इसने वैसे फेक डिटेल्स डाली हुई हैं, पैसे बटोरने के चक्कर में है। तो इस तरह जो मासूम लोग होते हैं वो अपनी जमा। हुँ, सही, सही बात कर रहे हैं आप। और आपका जो है नेट मेरा ख़्याल है डाउन हो गया है, बिल्कुल जैम हो गया है। सो अ, आई थिंक मैं आपको जो है रिमूव कर देती हूँ। ओके, थैंक यू जॉइन करने के लिए। ओके, सो व्यूअर्स बहुत अच्छी बात ये बता रहे थे कि भई आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड OLX के हवाले से ये चीज़ें मैं पहले भी सुन चुकी हूँ कि OLX पे इस तरह होता है। सो अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ देख रहे हैं, जब तक कि यू आर नॉट 100% श्योर कि वो ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, दो OLX इतना बुरा प्लेटफॉर्म नहीं, बट देन जो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड्स ऑन देम। सो ये है कि अगर आप OLX पे कोई चीज़ देख भी लेते हैं, तो ऑलवेज ट्राई कि भाई अपने साथ जो है किसी को एक तो पहली बात
कोशिश ये करें कि पब्लिक प्लेस में मीट करें, किसी के पर्सनल एड्रेस पे या घर पे ना मीट करें, क्योंकि यू नेवर नो के व्हाट इज अवेटिंग यू, एंड देन यू ऑलवेज हैव टू टेक पीपल विथ यू रादर देन कि खुद आप धड़ल्ले से कहीं पर भी चले जाएं. So that always keeps you safe. So safety is first priority, and then online कहाँ से करें आप, कौन से प्लेटफॉर्म यूज करें, कौन से लोगों के साथ कनेक्ट करें, and that is very important in online shopping. So always do the right thing, do legally whatever that is. And yes, frauds, चूंकि आजकल महंगाई इतनी ज्यादा है, तो people have resort to these things कि भाई fraud कर लो या पैसे मांग लो या things like that. So you have to be careful. So that's why I keep on saying कि भाई social media पे it's a great responsibility to be on social media, and you have to use it very wisely. So okay, now I'll see if there's anyone else who I can bring on camera. Umair Khan, let me see if you. Yes, I can't add you क्योंकि मैं आपको screen पे नहीं देख सकती. Okay, there was one comment. Let me just scroll the comments and see if I can, take anyone's comment. Okay, Raza Haider. Okay, yes, Raza Haider is, I guess, writing a message for Wasim Saab, who was just online. So, okay. I guess that's all, and now I'll bid you bye bye. और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात जो है मंडे को होगी, and fresh, with a fresh mind, all relaxed and calmed, and well, I'm already calmed, but all relaxed, और नींद भी अच्छी खासी मैंने पूरी की होगी over the weekend. और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मंडे को गप्पे लगाएंगे, and you're going to tell me first thing, you're going to remind me कि I have to ask you how you spent your weekend, and then we are going to discuss our topic whatever that is. And in the meantime, अगर किसी को जो है कोई आप चाहते हैं मैं किसी चीज पे डिस्कशन करूं, whatever topic that is, or whatever you want me to discuss, so just pour in your comments in the suggestion box, and I'll be addressing those topics as well. Till then, bye bye and Allah Hafiz.